Today we initiated our discussion on we call union legislature. Union legislature. So what do you mean by union legislature? Word union we call sometimes central, and legislature means law making. Law making. And my dear friends, at central level the law making body we call parliament. तो हमारे यहाँ जो सेंटर में लॉ बनाए जाते हैं इस बॉडी का नाम क्या है? पार्लियामेंट. तो एट सेंट्रल लेवल द लॉ मेकिंग बॉडी इज पार्लियामेंट. सो समटाइम्स इंटरचेंजेबली वी यूज वर्ड यूनियन लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट. एंड वेन एवर वी से पार्लियामेंट, हु इज हियर इन द पार्लियामेंट? सर, मैडम, पार्लियामेंट कंसिस्ट्स थ्री थिंग्स. वन इज योर प्रेसिडेंट. One is your President of India, Mahamahim, हमारे महोदय राष्ट्रपति. Then it consists of two houses, Rajya Sabha and Lok Sabha. Rajya Sabha and Lok Sabha. So whatever we have seen that Parliament at central level, the main purpose of Parliament is to make laws. In general, if we talk, Parliament performs two important functions. Parliament दो important function perform करती है. One function of deliberation, deliberative function, लिखा दूंगा मैं आखिर में. Second is function of representation. By deliberation, it has to debate to make laws for the smooth conduct of business in country. Parliament is a platform जहाँ पे हम laws बनाते हैं. Parliament is a platform जहाँ debate और discussion होता है nations को लेकर. Parliament is a platform जहाँ पे हम national important issues को discuss करते हैं. Parliament is a platform जहाँ पे जो government होगी उससे opposition party criticize करेगी. In our coming lectures, I am going to discuss with you that in Parliament everything is fixed. At 11 it starts, and the first hour of Parliament is known as zero. First hour of the Parliament is known as question hour, while opposition can raise question to the government. 10 to 11 to 12. Then 12 to 1, it is known as zero hour. Then lunch break, and 2 to 4 is a business hour while we are making the law. तो ऐसे करके पार्लियामेंट की हर चीज फिक्स होती है. ये पूरी चीजें आने वाले लेक्चर में हम लोग डिबेट और डिस्कस करेंगे. एंड माय डियर फ्रेंड्स, कल एक और चीज हमने ये डिस्कस की थी कि साहब इन इंडिया अवर पार्लियामेंट इज हैविंग टू हाउसेज. वन इज लोक सभा, सेकंड इज राज्य सभा. व्हेन ए लॉ मेकिंग बॉडी इज हैविंग टू हाउसेज वी कॉल इट बाइकैमरल लेजिस्लेचर. व्हाट? बाइकैमरल लेजिस्लेचर. बाइकैमरल लेजिस्लेचर मीन्स जब आपके लॉ मेकिंग बॉडी के टू हाउसेज होंगे. और अगर हम इंडियन के सिनेरियो में देखेंगे, वी हैव ए राज्यसभा एंड वी हैव ए लोकसभा. एक तो ये चीज हम लोगों ने डिस्कस की. आई एम श्योर एवरीबॉडी इज कंफर्टेबल ऑन दिस. इसके बाद हमने कहा साहब कि पार्लियामेंट में तीन चीजें होती है, प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा. Although president is not a member of either house of parliament, then how he is an integral part of the parliament? तो यहाँ पे हमने लिखा था president of India is integral part of parliament, but he is not a member of any house. Very nice. He is not a member of any house. That means neither he is a member of Lok Sabha nor he is a member of Rajya Sabha. ये किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होता है. Then how president is an integral part of parliament? He possesses some very important legislative powers. Very nice. Because we have given some legislature power to the president of India. For example, a bill can become a law when it is approved by the president of India. और फिर हमने कहा था जो हमारा पार्लियामेंट है ये पूरे साल आपको वहां पे नहीं मिलेगा. देयर आर 3 सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट इन अ ईयर. दैट इज योर बजट सेशन, मॉनसून सेशन, विंटर सेशन. इट इज अ प्रेसिडेंट हु कैन समन द बजट सेशन. इस सेशन को कॉल करने बुलाने का काम रोल किसका है? प्रेसिडेंट का.
or to declare a session. That means president prorogues the session. It is the president who can declare the session end. तो ये कुछ हमने इम्पोर्टेंट पावर्स किसको दे के रखे हैं, प्रेसिडेंट को, जिसकी वजह से वो एक महत्वपूर्ण अंग है किसका, पार्लियामेंट का, विदाउट बीइंग ए मेंबर ऑफ एनी हाउस. साथ में हमने ये कहा था कि देयर आर 3 सेशन ऑफ पार्लियामेंट एंड देयर इज ए इंटरवेनिंग गैप बिटवीन सम सेशन ऑफ पार्लियामेंट. फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ जनवरी में कोई सेशन नहीं होता है, सितंबर में कोई सेशन नहीं होता है. इस टाइम को हम बोलते हैं रिसेस. So what is a recess? Recess means the intervening gap between 2 sessions of parliament. और उस टाइम पे अगर हमें कोई भी लॉ बनाने की नीड या रिक्वायरमेंट आती है, वो पावर हमने किसको दिए हुआ है, प्रेसिडेंट को. और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, could you tell me? Ordinance. So ordinance making, ordinance are those laws which are made by the president when parliament is not in session. तो इन चीजों की वजह से हमने कहा कि सर प्रेसिडेंट एंजॉय सर्टेन लेजिस्लेटिव पावर्स, दैट इज व्हाई ही इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट. तो एक हमारा ये डिस्कशन हो गया. तो आई होप मोटी मोटी क्या चीजें आपको एग्जाम के लिए याद रखनी है. यूनियन लेजिस्लेचर बोले तो आपका पार्लियामेंट, एंड पार्लियामेंट मीन्स प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा, एंड आवर लेजिस्लेचर इज ए बाइकैमरल बिकॉज वी हैव 2 हाउसेज एट सेंट्रल लेवल. फिर इसके बाद हम लोगों ने 2 बात करी थी, कुछ बेसिक चीजों से हम लोग शुरू करेंगे एंड देन वी विल मूव फ्रॉम बेसिक टू एडवांस. जो भी आजकल इश्यू चल रहे हैं, डिबेट हो रहा है, वो आप इजीली कर लो, बट उसके लिए पहले महत्वपूर्ण क्या है, हमको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. सो वी हैव टेकन राज्यसभा. राज्यसभा इज ऑल्सो नोन एज अपर हाउस. राज्यसभा इज ऑल्सो नोन एज अपर हाउस. और ब्रिटिश पार्लियामेंट में अपर हाउस को बोला जाता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स. बिकॉज इन आवर सिलेबस देयर इज ए टॉपिक वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन. तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ से रिलेट करते चलेंगे. वैसे ही यूएस की पार्लियामेंट के अपर हाउस को बोला जाता है सेनेट. क्या बोला जाता है, सेनेट. इज दिस क्लियर? देन सर अपर, व्हाट इज द रोल ऑफ राज्यसभा? The role of Rajya Sabha is, it is a federal chamber. It is a federal chamber. What do you mean by federal chamber? Sir, it represents the interest of state. तो अगर हम बात करेंगे अपनी कंट्री भारत की, तो there are political divisions and these political divisions we call state. तो अगर स्टेट का कोई मुद्दा है, कोई बात है, स्टेट के रिलेटेड कोई चीज हमको डिस्कस पार्लियामेंट में करनी है, तो उसके लिए कौन सा हाउस है, राज्यसभा. दैट इज व्हाई वी कॉल राज्यसभा इज अ फेडरल चैम्बर. एंड दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन योर प्री एग्जामिनेशन. दिस इज वन थिंग. ठीक है ना. तो जो भी स्टेट की बात होगी, फॉर एग्जाम्पल यूपी है आपका, पंजाब है आपका, तमिलनाडु आपका, केरला है, कर्नाटका है, तो अगर स्टेट के इंटरेस्ट की कोई भी बात आपको सेंट्रल लेवल पे डिस्कस करनी है, तो ये काम कौन करेगा, राज्यसभा के मेंबर करेंगे. और इस बेस पे हम इसको बोलते हैं इट इज ए फेडरल चैम्बर. इज दिस क्लियर? देन वी हैव सीन अनदर थिंग, द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट. राज्यसभा इज ऑल्सो नोन एज लेजिस्लेचर्स. व्हाई? बिकॉज देयर मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी इज टू मेक लॉ. The maximum strength of member of parliament is कितना, 250. So the maximum strength of parliament shall not exceed 250. At present there are 245 members. तो फिर आपने क्वेश्चन रेज किया सर कि ये 250 और 245 इसका क्या मतलब होता है. तो अभी की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हमें 245 की नीड है. कल को पॉपुलेशन बढ़ती है तो हमने एक अपर नंबर फिक्स करके रखा है, तो ये सीट्स भी आपकी बढ़ जाएगी. इज दिस क्लियर? और ये जो 250 मेंबर हमारे पास पार्लियामेंट के हैं, दिस 250 मेंबर्स आर 2 टाइप्स. वन इज नॉमिनेटेड, and second is elected. Nominated and elected. Sir, at present there are 245 members पार्लियामेंट में, जिसमें 2 तरह के मेंबर हैं, नॉमिनेटेड एंड इलेक्टेड. नॉमिनेटेड का मतलब होता है लोगों को कोई इलेक्शन नहीं लड़ना है. और ये नॉमिनेशन कौन करेगा इंडिया के सिनेरियो में? इट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. थोड़ी सी आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है. हु नॉमिनेट्स
President of India. Very nice. How many members? 12 members. And what are the basis of nomination? The person who are having special knowledge in the field of art, science, लिटरेचर, सोशल सर्विस। तो ये क्वेश्चन भी आपके आईएएस में पूछा गया है कि सर इन राज्यसभा 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, बट इन 12 मेंबर्स की खासियत क्या होगी, इनमें क्या क्वालिटीज होंगी? या तो ये आर्ट के फील्ड से आएंगे, साइंस के फील्ड से आएंगे, लिटरेचर से आएंगे, या किससे आएंगे? सोशल सर्विस से आएंगे। सेकंड पार्ट ऑफ द डिस्कशन इज रेस्ट हाउ मेनी मेंबर आर देयर? 233 members are there. These 233 members are elected by not people of India, but MLAs of concerned state. But MLAs of concerned state. तो जितने भी हमारे स्टेट हैं, उनमें हम लोग अपना मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली चुनेंगे, और यही मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली किसके मेंबर को चुनेगा? राज्यसभा के मेंबर को, क्योंकि राज्यसभा रिप्रेजेंट किसे करता है? स्टेट। सो 233 मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द एमएलएज ऑफ कंसर्न स्टेट। और थोड़ा सा और मैं अगर डीप में जाऊं, इसमें से 213 नंबर को स्टेट के एमएलए चुनते हैं, और 20 मेंबर्स को चुनते हैं यूटीज के एमएलए। और 3 यूटीज में इसमें आएंगे आपकी दिल्ली, पौंडीचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर। सो कमिंग बैक लास्ट डिवीजन, सर द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा इज 250 मेंबर. It shall not exceed more than 250 at present. There are 245. एकदम याद कर लेने हैं. Out of these 245, there are 2 types of members. One is elected and second is nominated. 12 members are nominated by president among the person who are having special knowledge in the field of art, science and culture. Rest 233 members are elected by the MLAs of concerned state, out of which 213 को स्टेट वाले चुनेंगे और 20 को यूनियन टेरिटरीज के एमएलए चुनेंगे। और यूनियन टेरिटरीज में हमारे यहाँ 8 यूनियन टेरिटरी है, लेकिन हमने केवल 3 यूनियन टेरिटरी को वोटिंग राइट दिया है, दैट इज दिल्ली, पौंडीचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ तक बात सही है। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि सर व्हाट इज द पर्पज ऑफ दिस नॉमिनेशन, हम यहाँ पे ये 12 नॉमिनेटेड मेंबर क्यों रखते हैं? तो इसका एक सिंपल सा रीजन है, कल की डेट में ये लोग अपने फील्ड के एक्सपर्टाइज होते हैं। कोई स्पोर्ट्स में होगा, कोई आर्ट में होगा, कोई लिटरेचर में होगा, कोई सोशल सर्विस में होगा। कल की डेट में जब हम लॉ बनाएंगे, दे आर गोइंग टू असिस्ट इन लॉ मेकिंग प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ आर्ट में, तो हमें कोई सिनेमा इंडस्ट्रीज के लिए कोई कल की डेट में लॉ बनाना है। हो सकता है हमारे मेंबर्स को उसके बारे में ज्यादा जानकारी ना हो, तब हम हेल्प ले सकते हैं इन नॉमिनेटेड मेंबर से। सो आई एम श्योर द पर्पज इज क्लियर दैट व्हाई दीज 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड इन राज्यसभा। इसके बाद हम कुछ और बेसिक नॉलेज की तरफ बढ़े कि सर राज्यसभा का जो मेंबर होता है इसकी टर्म कितने साल होती है? 6 years. फॉर एग्जाम्पल, if I become a member of Rajya Sabha tomorrow, I will enjoy the term of how many years? 6 years. 5. Second part of the discussion is Rajya Sabha में every 2 years. Very nice. Every 2 years, 1/3 members retire. 1/3 members retire. और इलेक्शन इन्हीं 1/3 मेंबर का होगा जो सीटें हमारे पास वैकेंट होगी। दैट इज वाई वी कॉल राज्यसभा इज ए परमानेंट चैम्बर, परमानेंट हाउस। हाउ